My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions from second practice test for NMCT Narsi Monji competency test. स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट पहले मेक श्योर टू सॉल्व दैट competency टेस्ट योरसेल्फ. टॉप पे लिंक पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेकआउट कर सकते हो. पहले अटेम्प्ट करो अपने एंड पे एंड देन फॉर द सॉल्यूशंस दैट विल बी बेस्ट फॉर यू. ऑल्सो लाइक दिस सेशन इफ यू लाइक द कंटेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. सो स्टार्ट करते हैं. So definitely there are 4 sections, total 30 questions in that test will be there, or in every question +3 will be for a correct answer and -1 for a incorrect answer. So पहले section आएगा verbal ability. So we'll be doing 1 RC based on that. So this is the RC, then followed by 4 questions. Let us read the RC first. The commodification of time has arguably become the defining feature of the late capitalism, yet its psychological toll is often obscured by the very metrics used to measure productivity. Commodification of time, and that is arguably defining feature of late capitalism. Psychological toll is often obscured by the very metrics used to measure productivity. In the pre-industrial era, time was task-oriented, defined by the rhythms of the nature and necessity of the labor itself. The cow needed milking, the harvest needed gathering, the separation of work from leisure was very porous. With the advent of the clock tower and subsequently the factory whistle, the time became timed labor, an abstract currency to be spent, saved or wasted. So initially in the first, क्योंकि टाइम के लिए क्या करा, प्री इंडस्ट्रियल एरा में टाइम वॉज टास्क ओरिएंटेड एंड देन इट बिकेम टाइम लेबर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर द इंडस्ट्रीज का अराइवल. टुडे वी ऑक्यूपाई अ थर्ड फेज दैट इज अटेंशन इकोनॉमी. सो इनिशियली इट वॉज टास्क ओरिएंटेड, then it became time labor, and at present this is attention economy. In attention economy, scarcity is no longer the number of hours in a day but cognitive bandwidth of the subject. In this regime, the distinction between labor and leisure has not just blurred, it has collapsed. So there is no distinction between labor and leisure now. The device that delivers the morning email is the same one that streams the evening entertainment, creating a state of continuous partial attention. Philosopher Byung-Chul Han characterizes this as the burnout society, where external coercion has been replaced by internal compulsion. External coercion, this has been replaced by internal compulsion. We are no longer exploited merely by a boss. We exploit ourselves in the name of self-optimization. The achievement subject is free from the master, yet this freedom is a paradoxical prison of infinite can-do. This temporal disintegration has profound implications for temporal sovereignty. That is, the capacity to govern one's own time. When algorithms predict and prompt our engagement, the future is no longer an open horizon of possibility, but a free feed of probabilities pre-selected to maximize engagement. The capability to be bored, to experience deep unmonetized time is atrophying. Atrophying यानी कि declining. So पहले तो बोर होते थे लोग, बट अब बोर होने का स्कोप नहीं. क्यों? अटेंशन इकोनॉमी है. मोबाइल पे फीड देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट द पॉइंट इज कि अब बोर नहीं हो रहे हो. Okay, so capability to be bored, to experience deep unmonetized time, that is important. That was there, but now that is not there. Boredom, traditionally the precursor to creativity, is now treated as a system error immediately patched by dopamine hit. अब चाहिए डोपामाइन हिट. तो पहले जो बोर्डम मिलता था, बोर्डम की वजह से बोर होते थे, फिर कुछ सोचते थे, अपने एंड पे सोचते थे, सोच के कुछ क्रिएटिव करते थे. अब ऐसा मौका नहीं मिल रहा. सो अब तुम्हें क्या चाहिए? डोपामाइन हिट चाहिए. रील्स देखोगे इसके लिए. Thus the modern subject is chronologically wealthy but ontologically impoverished. Chronologically, he is wealthy compared to previous times, but now ontologically he is impoverished. Ontologically means, ontology implies state of being. Okay, state of being. So ontologically he is impoverished, possessing more time-saving devices than any generation in the history, yet lacking the duration required for the formation of a cohesive self. So this is the whole passage. From task-oriented, time has become time labor, and then finally now has moved to attention economy, and from external coercion we have moved to internal compulsion in the name of self-optimization. Temporal sovereignty has also been compromised. With this temporal disintegration,
and now we are experiencing lesser boredom and hence lesser creativity and everything else. So chronologically wealthy and ontologically impoverished. That is the basic crux of this passage. So now questions. First question, based on the passage, the author would most likely agree that self-help books focused on productivity are which of the following? As per the passage. Self-help books. Option A are essential tools for navigating the attention economy. Option B represent a form of resistance against the factory whistle model of time. Option C are mechanisms of internal compulsion that reinforce self-exploitation. Or option D fail because they do not address the algorithmic manipulation of laser. तो क्वेश्चन पैसेज में ऑथर क्या कह रहा था? ऑथर वाज सेइंग दैट वीव रिप्लेस्ड एक्सटर्नल कोercion with internal compulsion in the name of self-optimization. In this era, so self-help books are basically a form of internal coercion, again internal compulsion. So basically they are mechanisms of, as per the author, they are mechanisms of internal compulsion that reinforce self-exploitation. Option C should be the answer. Okay, not the essential tools for navigating attention economy, neither represent a form of resistance, in fact support it, or neither fail because they do not address the algorithmic manipulation of the laser. Correct answer is option C. Second question, which of the following observations, if true, would most strengthen the author's claim about the atrophy of boredom? As per the passage, atrophy क्या है? Decline of boredom. Decline of boredom is there. और क्यों है decline of boredom? That was mentioned here, atrophying the capability to be bored, to experience deep unmonetized time that is declining. And boredom was traditionally precursor to creativity. But now there is not deep unmonetized time. That is absence of there. That is why that is atrophying of boredom. That is what is there. Option A, recent neurological studies show that the default mode network of the brain active during daydreaming is less active in the heavy social media users. Okay, those who use social media heavily have less boredom, less free time, so that is why less boredom. Or lesser boredom implies that default mode network of the brain that was active during daydreaming is less active in them. So this makes sense because this is strengthening the argument that due to lesser boredom, as the boredom decreases, creativity also decreases because that is a precursor of it. So less activity in the deep default mode network of the brain. Hold पे रखते हैं. Option B, productivity in the manufacturing sector has plateaued despite the introduction of advanced time management software. हमें बात करनी है boredom की, mind की बात कर रहे हैं. Productivity in the manufacturing sector is not related. That is irrelevant. People report higher level of happiness when they engage in flow state activities like coding or painting. अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि हमें फोकस करना है ऑन डिक्लाइनिंग ऑफ बोर्डम. ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना है, तो नॉट रेलेवेंट फॉर दैट. The average work week has decreased by 5 hours over the last century due to automation. So if average work week has decreased by 5 hours, so now more available free time should be there. Isn't it so? Isn't it so? अब मोर अवेलेबल फ्री टाइम की वजह से ज़्यादा बोर्डम होता, ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता टू बोर होने के लिए, बट वैसा तो हो नहीं रहा एक्चुअल में. सो दिस इज अगेन नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन दैट द ऑथर इज सेइंग. सो नॉट एक्सटेंडिंग द आर्गुमेंट. ऑप्शन ए शुड बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रेज ontologically impoverished implies that the modern subject ontologically state of being and that way he is impoverished has lost the financial means to enjoy their free time. Now it is talking about the financial means. Ontologically is not about financial means but rather metaphysical meaning कि metaphysically state of being को experience नहीं कर पा रहा उतना better तरीके से. That is what is the interpretation. Option B lacks a fundamental sense of being or meaningful existence despite having time. So yes, this makes sense. He may be having time but he is lacking fundamental sense of being or meaningful existence. Option C is unable to distinguish between virtual reality and physical reality. Again, distinguishment between the realities, that is not the case. Option D has become efficient at work but inefficient at leisure. Answer is ontologically impoverished means that state of being में प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे he is not really understanding the meaningful existence कि क्यों जिंदा है, क्यों कुछ काम कर रहे हैं, मीनिंग क्या है, मकसद क्या है. तो मकसद नहीं समझ में आ रहा. ऑप्शन बी इज द आंसर. द सेंट्रल थीसिस ऑफ द पैसेज क्या होगा? ट्रांजिशन फ्रॉम टास्क ओरिएंटेड टाइम टू क्लॉक टाइम was the most damaging shift in human history. That is not being concluded by the passage that this is the most damaging shift. Algorithms are the primary enemy of human productivity and must be regulated. क्या पैसेज ये कह रहा था कि algorithms are the primary enemy? कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया, so this will not be correct either. और must be regulated ऐसा भी कहीं पे मेंशन नहीं किया है.
Option C, we have moved from external exploitation to a self-imposed digital serfdom that erodes the capacity for deep existence. Makes sense. And option D, attention economy has solved the problem of boredom but created the problem of burnout. कहीं पे भी मेंशन है क्या कि सॉल्व किया है प्रॉब्लम बोर्डम? दैट इज नॉट मेंशन. ठीक है, बोर्डम को खत्म किया बट प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं किया ना. एट्रोफी ऑफ बोर्डम इज बीइंग मेंशन. तो डिक्लाइन इन बोर्डम इज मेंशन बट हैज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बोर्डम. दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन सी. क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ देयर इज आर्गुमेंट गिवन एंड क्वेश्चन आस्किंग द आर्गुमेंट अबव अज्यूम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. आर्गुमेंट कह रहा है टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन द सिटी इंट्रोड्यूस्ड अ हैवी कंजेशन टैक्स ड्यूरिंग पीक आवर्स. 1 month later, average commute times have remained exactly the same. Therefore, the tax failed to deter the drivers. That is the conclusion basically for the argument. The argument कह रहा है reduce करने के लिए to reduce traffic congestion, city introduced a heavy congestion tax during peak hours. 1 month later, average commute time still has remained exactly the same. It has not changed despite introduction of congestion tax. So therefore, the conclusion is that the tax failed to deter drivers. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एजम्पशन. एजम्पशन क्या होगा? एजम्पशन हमेशा किसी भी आर्गुमेंट का, किसी भी स्टेटमेंट का फाउंडेशन होगा जिस पे वो आर्गुमेंट स्टैंड कर रहा है. ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए सेइंग द टैक्स रेवेन्यू वाज नॉट यूज्ड टू इंप्रूव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली. ऑप्शन बी, ड्राइवर्स डिड नॉट शिफ्ट देयर कम्यूट टू नॉन पीक आवर्स टू अवॉइड द टैक्स. ऑप्शन सी, द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज द सोल डिटर्मिनेंट of commute time in the city. And option D, commuters are generally wealthy enough to afford a tax without complaint. Assumption क्या होगा हमारा? If despite introduction of congestion tax, average commute time has remained almost same, city average commute time, if that has still remained same, that implies कि जो ड्राइवर्स हैं अभी भी उतना ही ड्राइवर्स हैं, अभी भी उतना ही ट्रैफिक है. ट्रैफिक तो चेंज नहीं हुआ पीक आवर्स में. तो इफ पीक आवर ट्रैफिक हैज नॉट चेंज्ड, isn't it so? कहीं ना कहीं पे मतलब तो ये निकल रहा है. तो ऑप्शन सी क्या हमारा रिलेवेंट आंसर नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक इज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ द कम्यूट टाइम. क्योंकि हमारा एजम्पशन होना चाहिए. एजम्पशन यानी कि जो कंक्लूजन है उसका जो फाउंडेशन है वो होना चाहिए. तो इफ दिस इज द एजम्पशन कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज द सोल डिटरमिनेंट, देन ओनली वी कैन कंक्लूड दैट द टैक्स फेल्ड टू डिटर ड्राइवर्स. इफ देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, इफ देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल दैट डिटरमाइन द कम्यूट टाइम, तो फिर किसी और फैक्टर की वजह से भी हो सकता है कि इवन इफ ड्राइवर्स डिटर्ड, इवन इफ ड्राइवर्स आर लेसर नाउ, देयर माइट बी अदर फैक्टर्स, तब तो फिर हमारा जो कंक्लूजन है वो फेल हो जाएगा. तो ऑप्शन सी शुड बी द आंसर, दैट वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज द सोल डिटरमिनेंट of commute time. That is why the tax failed to deter driver. We can conclude that. Okay. Option B जो कह रहा है हमारा, drivers did not shift their commute to non-peak hours. Option B भी सही लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये ऑप्शन बी के साथ में कि ऑप्शन बी इज मोर ऑफ अ कंक्लूजन. ये assumption नहीं है, ये कंक्लूजन है. लास्ट लाइन जो लिखी है देयरफॉर द टैक्स फेल्ड टू डिटर ड्राइवर्स, ये इससे पहले वाला पार्शियल कंक्लूजन है, बट ये assumption नहीं है. assumption पहले आएगा, फाउंडेशन है. ठीक है, assumption पहले आएगा. सो दैट इज वाई सी इज द assumption, बी इज पार्शियल कंक्लूजन. कि 20 के बाद हम कह सकते हैं कि टैक्स फेल टू डिटर ड्राइवर्स बिकॉज ड्राइवर्स डिड नॉट शिफ्ट देयर कम्यूट टू नॉन पीक आवर्स. हेंस बी विल नॉट बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराजिम्बल. सो देयर आर 4 स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, हाउएवर दिस creates a purity spiral where the group constantly purges members for minor deviations. Second statement, in groups often define themselves by a shared set of sacred values. Third, the result is a smaller, more radicalized core that is increasingly detached from reality. And fourth, to signal loyalty, members must demonstrate adherence to these values more fervently than others. अब जो पहला स्टेटमेंट है हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, दिस कैन नॉट बी द स्टार्टिंग तो फर्स्ट से नहीं हो सकता. सेकेंड है, इन ग्रुप्स ऑफन डिफाइन देमसेल्व्स बाय अ शेयर्ड सेट ऑफ सैक्रेड वैल्यूज. So they are defining themselves by a shared set of sacred values. So 2 could be a starting point. The result is a result, यानी कि ये अल्टीमेट बात कर रहा है, काइंड ऑफ कैनॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली. ठीक है, सो 2 से भी स्टार्ट होने के चांसेस कम है. और 2 से बोल रहे हैं 3, रिजल्ट वाला थर्ड है, तो थर्ड से भी स्टार्ट होने के चांसेस कम है, और ऑप्शन भी कहीं पे नहीं दिया है, तो 3 इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट. टू सिग्नल लॉयल्टी, मेंबर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एडहेरेंस टू दीज वैल्यूज. दीज क्या है, वैल्यूज कौन से, दीज सैक्रेड वैल्यूज. तो बेसिकली दिस इज referring to this statement. So 2 should be the starting point, followed by 4. In groups often define themselves by a shared set of sacred values. To signal loyalty, members must demonstrate adherence to these particular values more fervently than others. 2 के बाद आ गया 4. 4 के बाद में आना चाहिए 1. However, this creates a purity spiral where the group constantly purges members for minor deviations. And finally, as a result, the result is a smaller, more radicalized core that is increasingly detached from reality. 2, 4, 1, 3 should be the answer. Option
he should be the answer. Clear है? Next question. Identify the statement that is grammatically correct and logically sound. Sentence that is grammatically correct and logically sound. Now, had the board known about the merger, they would not only fire the CEO but also sue him. Not only did the board fire the CEO, but they also sued him had they known about the merger. Had the board known about the merger, they would not only have fired the CEO but also sued him. And the board would have not only fired the CEO but also sued him if they knew about the merger. Option C should be correct. Had the board known about the merger, they would not only have fired the CEO but also sued him. ठीक है, would have आना चाहिए. So option C should be the answer. Okay. बाकी ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, बट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर श्योर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइकोनोक्लास्ट डॉगमा से जैसे रिलेटेड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी रिलेटेड इन दैट वे. एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है. सो इकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकन्स को जो अटैक करता है दैट इज आइकोनोक्लास्ट. बेसिकली डोगमास को जो अटैक करेगा, बिकॉज डोगमा भी वही हुआ है. डोगमास को जो अटैक कर रहा है दैट इज आइकोनोक्लास्ट. तो बेस्ट आंसर विल बी मार्टिर एंड कॉज. मार्टिर तो किसी कॉज के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है, फॉर कॉज. आइकोनोक्लास्ट क्या है? अगेंस्ट डोगमा. डोगमास को अटैक कर रहा है, आइकॉन्स को अटैक कर रहा है, सो दैट इज अगेंस्ट डोगमा. एंड मार्टिर इज फाइटिंग फॉर अ कॉज, सो दिस इज नॉट करेक्ट. विसल ब्लोअर इज गोइंग अगेंस्ट सीक्रेसी. इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा है, सो दिस इज द आंसर. ऑप्शन बी शुड बी द आंसर. विसल ब्लोअर एंड सीक्रेसी आर कनेक्टेड इन द सिमिलर वे. साइकोफैंट इज डूइंग फ्लैटरी. चापलूसी कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है, सो अगेन नॉट द आंसर. एंड ट्रेटर is going against the country, but this is not the same as dogma and iconoclast. That is why D will not be the answer, B will be the answer. Okay. Next one. Diplomat's response was something. It appeared to offer a concession, but actually reaffirmed his country's hardline stance. Appear कुछ किया, actual में कुछ और था. Reaffirmed the country's hardline stance. So inceptive नहीं होगा. Inceptive यानी कि initial kind of nascent, वो तो नहीं होगा. Deceptive should be the correct answer. Deceptive. लगा कुछ और, हुआ कुछ और. Deception, deceptive. Moralizing, नहीं. Promising, नहीं. Option B should be the answer. Next one. Two facts are given and question asking which of the following, if true, best explains the apparent discrepancy between country X strict environment laws and still its higher measured pollution levels. पहला fact क्या कह रहा है? Fact number 1 is saying country X has the strictest environment laws in the region regarding factory emissions. So there are strictest environment laws in the factory X. In the country X. Fact 2, air quality monitoring shows that country X has higher levels of industrial pollutants than its neighbors with tax laws. With lax laws. ठीक है, रिलैक्स लॉज. तो यानी कि कंट्री एक्स में लॉज तो स्ट्रिक्ट हैं, इसके बाद भी हायर लेवल ऑफ पॉल्यूशन है, हायर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं. डज नॉट मेक सेंस. तो कहीं ना कहीं पैराडॉक्स है कि जब लॉज हमारे स्ट्रिक्ट है, इसके बाद भी कैसे हायर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है. देयर मस्ट बी सम रीजनिंग बिहाइंड दैट. वही चूज करना है हमको. विच द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन गिव द रीजनिंग. Option A, country X geography restricts air circulation, causing pollutants to accumulate rather than disperse. So geography restricts air circulation, that is causing pollutants to accumulate rather than disperse. Makes sense? हो सकता है reason. Second one, country X produces fewer industrial goods than neighboring countries. तो अगर lesser industrial goods produce कर रहा है, तब तो और भी कम होना चाहिए pollutants. So definitely this will not be the reason. Air quality monitors इन कंट्री एक्स आर लोकेटेड प्राइमरली इन लो पॉपुलेशन एरियाज. अब अगर लो पॉपुलेशन एरियाज में, स्पार्स पॉपुलेशन एरियाज में हमने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए हैं, तो उससे कहीं रीजनिंग नहीं मिलता कि हायर लेवल ऑफ पॉल्यूशन डिटेक्ट होगा. तो अगेन नॉट मेक सेंस. नेबरिंग कंट्रीज इंपोर्ट अ लार्जर शेयर ऑफ देयर इंडस्ट्रियल मशीनरी. हाउ इज इट रेलेवेंट फॉर दैट? कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो ओनली ऑप्शन ए इज एक्सप्लेनिंग द रीजनिंग कि वाई कंट्री एक्स माइट बी हैविंग higher level of industrial pollutants despite stricter environment laws, because country X geography restricts air circulation, causing pollutants to accumulate rather than disperse. Option A should be the perfect answer for this. क्या ये clear है? Okay, so now we are done with first section. Second section में move on करते हैं. That is mental ability. So a puzzle. There are two questions on this puzzle. Solve करते हैं. So there are 5 executives: Arjun, Bhavya, Charu, Diya and Ishan, and they sit around a pentagonal table facing inwards. Each has undertaken different projects out of alpha, beta, gamma, delta and epsilon, and then information is given. So they are sitting around a pentagonal table and facing inside. तो अगर facing inwards है,
रेक्टेंगुलर टेबल एंड एवरीवन इज फेसिंग इनवर्ड्स। मान लेते हैं कि कॉर्नर्स पे बैठे हुए, कॉर्नर पे बैठे हुए मान लो या सेंटर में बैठे हुए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बात एक ही है, बट दे ऑल आर फेसिंग इनवर्ड्स। ओके, बिकॉज अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट डिसाइड होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, अर्जुन इज नॉट वर्किंग ऑन अल्फा और गामा। अर्जुन is not working on, neither working on alpha nor working on gamma. The person working on delta sits second to the left of Arjun. तो अर्जुन के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन और भी दिया है हमें। अर्जुन सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ चारू, तो अर्जुन को कहीं भी प्लेस कर लेते हैं। लेट अस से अर्जुन इज सिटेड हियर, सो अर्जुन इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ चारू। चारू के लेफ्ट में बैठा है तो चारू मस्ट बी एट दिस प्लेस बिकॉज लेफ्ट इन दिस डायरेक्शन। तो in the left of Charu, Arjun is sitting, and Arjun is not working alpha and gamma, and person working on delta sits second to the left of Arjun. So second to the left of Arjun must be this place, and the person at this place is working on project delta. तो Arjun is definitely not working on delta either. अर्जुन ना तो अल्फा पे काम कर रहा है, ना गामा पे, ना डेल्टा पे, तो इधर अर्जुन इज वर्किंग ऑन बीटा, प्रोजेक्ट बीटा और प्रोजेक्ट एप्सिलॉन। नेक्स्ट और क्या है इन्फॉर्मेशन, चलो ये तो हो गया। ईशान सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भाव्या। नाउ अर्जुन इज सीटेड, चारू इज सीटेड, एंड ईशान इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भाव्या। ईशान और भाव्या को बिठाना है, आपस में इनका अरेंजमेंट गिवन है, ठीक है। सो ईशान इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भाव्या। नाउ इफ भाव्या इज सीटेड हियर, देन सेकंड टू द लेफ्ट ईशान मस्ट बी सीटेड हियर। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर हम भाव्या को यहाँ पे बिठा दें तो सेकंड टू द लेफ्ट विल बी द प्लेस ऑफ अर्जुन, बट वहाँ तो ऑलरेडी अर्जुन ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो और कोई पॉसिबिलिटी बनता नहीं है। डेफिनेटली दिस मस्ट बी द केस दैट भाव्या मस्ट बी सीटेड एट दिस प्लेस एंड हिज ईशान मस्ट बी सीटेड एट दिस प्लेस, बिकॉज भाव्या और ईशान में से कुछ भी, कोई भी इस प्लेस पे आ जाएगा, तब अर्जुन और चारू में से किसी की सीट में बैठाना पड़ेगा दूसरे पर्सन को। तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी अर्जुन और चारू को हमने बिठा दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली भाव्या एंड ईशान भी फिक्स हो गए, अर्जुन चारू भाव्या ईशान। तो बच गया हमारा दिया, तो दिया मस्ट बी सीटेड एट दिस प्लेस एंड दिया इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट डेल्टा, so that is also fixed. Now last one, executive working on gamma is sitting adjacent to those working on beta and alpha. तो बीटा और अल्फा के बीच में गामा वाला बंदा बैठा हुआ है। ओके, तो 3 कॉन्सेक्यूटिव हमें पता चल गए, इधर दे आर बीटा गामा एंड अल्फा और अल्फा गामा एंड बीटा, गामा इज इन द मिडिल। ओके, एंड अर्जुन इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन इधर बीटा और एप्सिलॉन। ओके, so executive working on gamma is sitting between beta and alpha, beta and alpha। तो या तो केस होगा कि अर्जुन इज वर्किंग ऑन बीटा, ईशान ऑन अल्फा, एंड देन गामा पे चारू वर्क कर रही होगी। क्या और कोई केस बन सकता है, क्योंकि अर्जुन को तो हमें बीटा या एप्सिलॉन ही देना है फॉर श्योर, और 3 कॉन्सेक्यूटिव हमें मिल गए हैं, दोज आर बीटा गामा एंड अल्फा। तो या तो बीटा फर्स्ट देन गामा देन अल्फा, या अल्फा गामा देन बीटा। अब अर्जुन को अल्फा दे नहीं सकते, ठीक है। भाव्य से अगर स्टार्ट करते हैं तो भाव्य को अगर हमने दे दिया, मान लो कि भाव्य को क्या दे सकते हैं, अल्फा दे सकते हैं, फिर बीटा दे सकते हैं। और अगर भाव्य को हमने अल्फा या बीटा दे दिया तो फिर अर्जुन को गामा देना पड़ेगा, बट अर्जुन इज नॉट वर्किंग ऑन गामा फॉर श्योर, तो अर्जुन को गामा दे नहीं सकते, ठीक है। तो डेफिनेटली गामा मस्ट बी विद चारू, क्योंकि दिया का तो फिक्स है डेल्टा। तो दिस मस्ट बी द केस, अर्जुन इज वर्किंग ऑन बीटा, चारू इज वर्किंग ऑन गामा एंड ईशान इज वर्किंग ऑन अल्फा, क्योंकि इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता, अर्जुन को अल्फा दे नहीं सकते। तो डेफिनेटली यही एक यूनिक केस बनेगा यहाँ पे, बीटा गामा अल्फा डेल्टा हो गया, और एप्सिलॉन मस्ट बी विद भाव्या। तो हमारा पूरा फिक्स हो गया हिसाब किताब। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द पर्सन वर्किंग ऑन एप्सिलॉन इज रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग 4 कंटिन्यू सिटिंग इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर, हु विल बी सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ अल्फा प्रोजेक्ट होल्डर। तो एप्सिलॉन वाले को अगर रिमूव कर दें तो हु विल बी सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ अल्फा प्रोजेक्ट होल्डर। तो अल्फा प्रोजेक्ट होल्डर इज ईशान, रिमूव हम कर रहे हैं एप्सिलॉन वाले को, तो अल्फा का लेफ्ट तो उससे चेंज नहीं होगा, दैट विल स्टिल रिमेन चारू वर्किंग ऑन गामा। आंसर विल बी ऑप्शन डी। Now Charu will be sitting immediately to the left of alpha project holder. Next question. Who sits to the immediate left of executive who had undertaken project gamma? तो गामा के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो गामा के लेफ्ट में है अर्जुन, हु इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट बीटा। अर्जुन हु इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट बीटा, दैट इज द आंसर। अब ना तो अर्जुन दिया है ऑप्शन में, भाव्या दिया है, चारू दिया है, एग्जीक्यूटिव वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट अल्फा दिया है, सो दीज आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज द आंसर, नन ऑफ दीज। ओके, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द सेकंड पजल. In a strange corporation, there are three departments: strategy, operations, and sales. Now, strategy persons always tell the truth, they are truth tellers. Operations persons always lie. And sales persons alternate between truth and lie. They can start with either. अगर पहले ट्रूथ बोलेंगे देन नेक्स्ट लाई होगा, फिर ट्रूथ होगा, अल्टरनेटर्स हैं. और अगर पहले लाई किया तो फिर ट्रूथ बोलेंगे एंड सो ऑन. ओके, सो strategy, operations, and sales persons. You meet three employees X, Y, and Z, and one is from each department. So one of them must be from strategy, one of them must be from operations, and one of them must be from sales. Now question is which department is X from? That is what you have to find out in the first question. और फिर second question हमारा, this one is the second question. Solve करने की कोशिश करते हैं. Statements given है तीनों के. X is saying I am from strategy, Y is saying X is from sales. तो X तो कह रहा है I am from strategy, but Y कह रहा है X is from sales. अब X या तो स्ट्रेटजी से होगा या फिर सेल्स से होगा या फिर ऑपरेशन से होगा. तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों एक्स एंड वाई, बोथ एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, बिकॉज एक्स अपने बारे में बात कर रहा है, वाई एक्स के बारे में बात कर रहा है. सो बोथ आर टेलिंग अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स एंड बोथ आर टेलिंग डिफरेंट थिंग्स. सो डेफिनेटली बोथ कैन नॉट बी करेक्ट एट द सेम टाइम, दो बोथ कैन बी लाइंग एट द सेम टाइम. वो तो पॉसिबल है कि एक्स भी झूठ बोल रहा है, वाई भी झूठ बोल रहा है, दैट इज पॉसिबल. बोथ कैन लाई बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रेटजी पर्सन्स आर ऑलवेज टेलिंग ट्रूथ, ऑपरेशंस पर्सन आर ऑलवेज लाइंग, और सेल्स वाला अल्टरनेट कर रहा है. तो अगर एक ही स्टेटमेंट है तो दैट कैन बी ट्रूथ और अ लाई. तो वी कैन हैव टू पर्सन्स टेलिंग द ट्रूथ और वी कैन हैव टू पर्सन्स टेलिंग द लाई. तो दो ट्रूथ टेलर वन लायर हो सकते हैं, मतलब ट्रू टेलर तो नहीं, बट आउट ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स टू कैन बी ट्रू एंड वन लाई, और देयर कैन बी टू लाइज एंड वन ट्रूथ, but no other case is possible. Isn't it so? So definitely X and Y cannot be true together for sure. Z is also saying about Y. Okay, so क्या केस हो सकता है? X can be either from strategy, or can be from sales, or can be from operations. If X is from strategy, in that case X is telling the truth, Y is lying. ठीक है, Z के बारे में पता नहीं हमको. But if X is from sales, then Y is telling the truth, X is lying. Last case, if X is from operations. If X is from operations, ठीक है, तो अगर X हमारा ऑपरेशन से है तो फिर वहां पे डेफिनेटली Z is lying, X is also lying, और Y is also lying, यानी कि all of them are lying, which is not possible. तो X cannot be from operations. अगेन एम्फोसाइज करता हूं, अगर X ऑपरेशन से है, इन दैट केस ऑल थ्री आर लाइंग, which is not possible because either two will be telling the truth, one will be lying, or two will be lying, one will be telling the truth. तो X definitely cannot be from operations. तो X या तो हमारा स्ट्रेटजी से होगा या फिर सेल्स होगा. दो केसेस बनेंगे हमारे पास. ओके, दो केसेस बनेंगे, या तो X हमारा स्ट्रेटजी से होगा या फिर सेल्स से होगा. तो अब तीनों डिपार्टमेंट मेंशन कर लेते हैं, स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस एंड सेल्स. Strategy persons always tell the truth, operations persons always lie, and sales are alternators. One lie, one truth. बट यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, तो पहले वो तो या तो ट्रूथ होगा या फिर लाई होगा. अब केसेस क्या है? एक्स कैन बी फ्रॉम स्ट्रेटजी और सेल्स. अब अगर एक्स स्ट्रेटजी से है या फिर एक्स कैन बी फ्रॉम सेल्स, और एक्स को स्ट्रेटजी में बिठा दिया तो वाई और जेड के लिए दो केसेस बनेंगे. तो दिस कुड बी वन केस और जेड एंड वाई. सिमिलरली एक्स को बिठा दिया हमने सेल्स पे तो वाई एंड जेड और जेड एंड वाई. टोटल फोर केसेस आर पॉसिबल. अब पहला केस कंसिडर करते हैं. फर्स्ट केस में एक्स इज फ्रॉम स्ट्रेटजी, तो एक्स मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ, और एक्स कह रहा है आई एम फ्रॉम स्ट्रेटजी, सो दैट इज ट्रू. ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट. नाउ वाई इज सेइंग एक्स इज फ्रॉम सेल्स, और इफ वाई इज इन ऑपरेशंस तो वाई मस्ट बी लाइंग. सो डेफिनेटली वाई तो लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं. जेड इज सेइंग दैट वाई इज फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज पॉसिबल बिकॉज जेड इज इन सेल्स, और सेल्स वाले अल्टरनेट करते हैं तो ट्रू भी बोल सकते हैं और फॉल्स भी बोल सकते हैं. सो जेड इज स्पीकिंग द ट्रूथ. तो दिस केस इज पॉसिबल. चलेगा, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, डेफिनेट नहीं है. इसके अलावा बाकी केसेस भी पॉसिबल हो सकते हैं. सेकंड केस, एक्स स्पीकिंग ट्रूथ, नो प्रॉब्लम विद दैट क्योंकि स्ट्रेटजी से है. अब जेड अगर ऑपरेशंस में है और जेड कह रहा है कि वाई इज फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस वाले हमेशा झूठ झूठ बोलते हैं, दे आर ऑलवेज लाइंग, तो डेफिनेटली जेड इज लाइंग. और वाई इज सेइंग एक्स इज फ्रॉम सेल्स, तो वाई इज ऑल्सो लाइंग. नाउ दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. Third case, y is from strategy. If y is from strategy, he must be telling the truth. But y is saying x is from sales. और x हमारा कहाँ से आ रहा है? हाँ, सेल्स पे है, तो ठीक है, ट्रू बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और x हमारा लाई कर रहा है, x इज लाइंग बिकॉज x इज सेइंग आई एम फ्रॉम स्ट्रेटजी बट ही इज फ्रॉम सेल्स, तो x लाई कर रहा है. z क्या कह रहा है? z इज सेइंग y इज फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ही इज ऑल्सो लाइंग. तो दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल.
सारे केसेस पॉसिबल आ रहे हैं। लास्ट केस देख लेते हैं। Z इज इन स्ट्रेटजी, तो Z मस्ट बी स्पीकिंग अ ट्रूथ एंड Z इज सेइंग Y इज फ्रॉम ऑपरेशंस, तो Y ऑपरेशंस में हमने रखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। और Y कह रहा है Y इज फ्रॉम X इज फ्रॉम सेल्स, तो Y भी ट्रू बोल रहा है, ट्रूथ बोल रहा है कि X इज फ्रॉम सेल्स, क्योंकि X को सेल्स में ही रखा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि Y ट्रूथ नहीं बोल सकता, क्योंकि Y ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस वालों को झूठ बोलना ही पड़ेगा, वो सच नहीं बोल सकते। तो डेफिनेटली दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो दीज ऑल थ्री केसेस आर पॉसिबल इन दिस केस। आउट ऑफ दीज थ्री एनी वन कैन बी द केस। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अगर हम सारे केसेस लेते तो भी ले सकते थे, क्योंकि टोटल 6 केसेस बनते हैं वहाँ पे, उनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पे 3 केसेस आर डेफिनेटली पॉसिबल एंड एनी ऑफ 3 कैन बी द केस। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विच डिपार्टमेंट इज एक्स फ्रॉम। एक्स कैन बी फ्रॉम स्ट्रेटजी इन द फर्स्ट 2 केसेस, या फिर एक्स कैन बी फ्रॉम सेल्स। तो ही कैन बी इन स्ट्रेटजी और इन सेल्स, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रेटजी और सेल्स। हाँ, ऑपरेशन से तो नहीं होगा, ये बात पक्की है। He is not from operations for sure, but he can be from strategy or sales. Answer will be cannot be determined because 3 cases are possible. क्लियर है बात? ठीक है, और ये तो पहले हमने कैलकुलेट किए थे, x cannot be from operations, because अगर x ऑपरेशन से होगा तो फिर all 3 are lying, which is not possible. Okay, next question. If x second statement is z is from sales, then which department is x from? Now second statement of x is that z is from sales. अब x अगर strategy department में है, if x is in strategy department, ठीक है, इफ ही इज इन स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट ही विल ऑलवेज बी स्पीकिंग ट्रूथ। तो अगर एक्स स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में है तो डेफिनेटली वो हमेशा सच बोलेगा। और अगर उसने सेकंड स्टेटमेंट दिया जेड इज फ्रॉम सेल्स, ठीक है, एक्स इज इन स्ट्रेटजी एंड इफ ही सेइंग जेड इज फ्रॉम सेल्स, तो डेफिनेटली जेड मस्ट बी ऑन सेल्स, वो तो हमेशा ही सच बोलेगा। तो जेड मस्ट बी ऑन सेल्स एंड देन ऑप्स में आ जाएगा भाई, ऑप्स में आ जाएगा भाई। क्लियर है? और ये केस तो हमारा बन ही रहा था, एक्स इज स्पीकिंग ट्रूथ, जेड हमारा सेल्स में आ गया और वाई आ गया ऑप्स में। बट सेकंड वाला केस भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक केस हमारा है जहाँ पे कि एक्स हमारा इज इन सेल्स, एक्स सेल्स में है, तो वहाँ पे भी तो वो बोल सकता है कि एक्स सेल्स में है। ठीक है, और अगर एक्स सेल्स में है तो फिर क्या हुआ है, उस केस में एक्स ने ऑलरेडी एक झूठ बोला है, ही हैज़ लाइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लाई। इन द सेकंड सिनेरियो, देखो पहला सिनेरियो हमारा क्लियर हो गया। एक सेकेंड आ गया, हाँ, कि एक्स इज इन स्ट्रेटजी, वाई इज इन ऑपरेशन एंड जेड इज इन सेल्स, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये केस बन सकता है हमारा, यानी कि एज पर द स्टेटमेंट दैट एक्स इज सेइंग जेड इज फ्रॉम सेल्स, एज पर दिस स्टेटमेंट वी कैन से कि ये वाला पहला वाला केस तो पॉसिबल है, सेकंड वाला केस नॉट पॉसिबल, बिकॉज जेड हमारा ऑपरेशंस में जा रहा है, जबकि एक्स स्ट्रेटजी में, तो एक्स हमेशा सच बोलेगा, तो सेकंड वाला केस विल नॉट बी पॉसिबल। बट क्या लास्ट वाला केस पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो लास्ट केस कह रहा है वाई इज इन स्ट्रेटजी, तो वाई हमेशा सच बोलेगा, बट बोला भी किसने, एक्स ने है। जेड इज इन ऑपरेशंस एंड एक्स इज इन सेल्स, अब सेल्स वाला अल्टरनेटर है, तो एक्स ने पहला लाई बोला है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्स वॉज लाई। इफ एक्स इज इन सेल्स, तो पहला स्टेटमेंट उसका लाई था, तो अगला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। बट सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जेड इज फ्रॉम सेल्स, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्स इज इन सेल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड सिंस दिस इज नॉट ट्रू रेदर फॉल्स, तो थर्ड वाला केस पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एंड सिंस दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो डेफिनेटली श्योर हो गया कि हमारा जेड सेल्स में है और एक्स स्ट्रेटजी में है, तो एक्स इज फ्रॉम स्ट्रेटजी फॉर श्योर। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिकॉज अगर सेल्स में होता तो सेकंड स्टेटमेंट उसको सच बोलना पड़ता, ट्रू बोलना पड़ता, बट जेड कैन नॉट बी फ्रॉम सेल्स बिकॉज एक्स इज इन सेल्स, दैट इज वाई दैट इज नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली एक्स मस्ट बी फ्रॉम स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हमें यूनिक आंसर मिल रहा है बिकॉज ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहे हैं ओनली अ फ्यू क्लाउड्स आर रेन, ओनली अ फ्यू जहाँ पे भी लिखा हो दैट इंप्लाइज कुछ क्लाउड्स तो रेन है, कुछ क्लाउड्स रेन नहीं होंगे। सम क्लाउड्स आर रेन एंड सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, बोथ आर ट्रू एट द सेम टाइम, ओनली अ फ्यू इंप्लाइज दैट बोथ आर ट्रू। सम क्लाउड्स आर रेन एंड सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अ सेट ऑफ क्लाउड्स एंड अ सेट ऑफ रेन and this part is also true that some clouds are rained, but this part is also true that some clouds are not rained, both are true at the same time because only if you mentioned है तो all नहीं हो सकता यहाँ से। all rain is water, all rain will be inside the set of water and no water is fire, तो water और fire में disjoint होगा, no water is fire, ये सेट आ गया हमारा फायर का।
फर्स्ट कंक्लूजन, सम क्लाउड्स आर नॉट फायर. कैन दिस बी कंक्लूडेड फॉर श्योर दैट सम क्लाउड्स आर नॉट फायर? तो जैसे ही क्रॉस लगा हमारा, वी नो कि नो वाटर इज फायर. तो जो भी पार्ट वाटर के अंदर है वो तो कभी फायर नहीं हो सकता. दैट पार्ट कैन नेवर बी फायर एंड दिस पार्ट ऑफ क्लाउड इज इनसाइड वाटर. तो दिस कैन नेवर बी फायर. दिस कैन नेवर बी फायर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड वन, ठीक है, सेकंड वन, ऑल क्लाउड्स कैन नेवर बी वाटर. तो क्या ये ट्रू है कि ऑल क्लाउड्स कैन नेवर बी वाटर? नो, दिस इज नॉट ट्रू. क्योंकि क्लाउड और वाटर में पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली ऑल क्लाउड्स कैन बी वाटर. दिस इज पॉसिबल. ठीक है, ऑल क्लाउड्स कैन बी वाटर, दैट इज पॉसिबल. तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. दैट इज पॉसिबल. ओके भाई, ऐसा भी हो सकता था कि ये हमने बनाया क्लाउड्स, रेन एंड देन दिस इज वाटर. तो यहाँ पे तो सारे के सारे क्लाउड्स हमारे वाटर हो गए. दैट इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो सेकंड इज पॉसिबल, फर्स्ट इज नॉट. एक सेकंड, सेकंड इज पॉसिबल, फर्स्ट तो कंक्लूजन ही है, ट्रू ही है. ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए इज द आंसर. एंड बाय सेकंड से मतलब ये ऑल क्लाउड्स कैन बी वाटर, दैट इज पॉसिबल. ओके, एंड कैन नॉट बी वाटर, दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन वन विल बी द आंसर, दैट ओनली वन फॉलोज. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीडीपी ग्रोज, इन्फ्लेशन राइजेस अनलेस द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स. अगर जीडीपी ग्रो करता है, इन्फ्लेशन विल बी राइजिंग अनलेस द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स. इफ जीडीपी इज ग्रोइंग, डेफिनेटली दिस इंप्लाइज दैट इन्फ्लेशन विल बी राइजिंग. कब राइज नहीं करेगा? अनलेस सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स. Otherwise, GDP growth implies that inflation will be rising. If this is the cause, inflation rise will be the effect unless central bank intervenes. Based on this, which of the following is true? If the central bank intervened, inflation did not rise. क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? देखो, हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है जीडीपी ग्रोथ से. तो इफ द जीडीपी इज ग्रोइंग, दैट इंप्लाइज दैट इन्फ्लेशन विल बी राइजिंग अनलेस द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स. तो फर्स्ट में जीडीपी ग्रोथ की तो बात ही नहीं आ रही है. ठीक है. Second one, if the GDP grew, inflation did not rise, central bank intervened. This makes sense because if the GDP has grown but inflation has not risen, that implies the central bank must have intervened. Because अगर central bank ने intervene नहीं किया होता तो inflation must have risen. So second statement is the correct statement. Third one, GDP did not grow, inflation did not rise. No, that is also not true. Inflation can also rise when GDP has not grown. That is also possible. ठीक है, ये जरूर कंक्लूड किया है. हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि जीडीपी अगर ग्रो किया है तो इन्फ्लेशन विल बी राइजिंग फॉर श्योर इफ द सेंट्रल बैंक इज नॉट इंटरवीनिंग. बट इफ द जीडीपी इज नॉट ग्रोइंग, दैट डज नॉट इंप्लाई दैट इन्फ्लेशन विल नॉट राइज. इन्फ्लेशन कैन स्टिल राइज विदाउट ग्रोथ ऑफ जीडीपी. ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इफ इन्फ्लेशन रोज, सेंट्रल बैंक डिड नॉट इंटरवीन, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. बिकॉज ये इंटरवेंशन कब जरूरी है? जब जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तब. जब जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है तब इन्फ्लेशन तब भी राइज कर सकता है, जबकि सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया है या नहीं किया है उसके बारे में हमें नहीं पता, बट वो कंक्लूड नहीं कर सकते फॉर श्योर. बिकॉज आवर कंडीशनल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी. दैट इज द प्रिकर्सर. ओके, नेक्स्ट वन, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? टू स्टेटमेंट्स आर गिवन और हमें पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा फॉर दैट. नाउ फॉर पी एंड टी टू बी रिलेटेड, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए स्टेटमेंट में. इफ यू कंसीडर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज सेइंग पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू हु इज डॉटर ऑफ एस. तो पी, क्यू एंड एस आर मेंशन्ड बट टी के पे मेंशन ही नहीं है, नॉट सफिशिएंट. पी और टी दोनों मेंशन होंगे तभी तो उनका रिलेशनशिप पता चलेगा. सेकंड इज सेइंग एस इज द वाइफ ऑफ टी इज ओनली सन. तो सेकंड स्टेटमेंट, इफ वी कंसीडर ओनली सेकंड स्टेटमेंट, एस और टी के बारे में बात हो रही है बट कहीं पे भी पी की बात नहीं हो रही, तो सेकंड अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. तो ना तो पहला ए आंसर है ना बी आंसर है. इफ यू टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो पी भी मेंशन हो गया और टी भी मेंशन हो गया. P is the brother of Q, who is the daughter of S, and S is the wife of T's only son. So P and T both are mentioned, so this should be sufficient. Okay. Also, question is asking P. How is P related to T? How is P related to T? और P क्या है? ब्रदर है, यानी कि जेंडर भी P का मेंशन है. बिकॉज कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है ब्लड रिलेशन में कि अगर जेंडर मेंशन नहीं हो तो P के बारे में पता नहीं लगा P भाई है, बहन है, क्या नहीं है, तो उसके लिए जेंडर भी इंपॉर्टेंट है P का. बट साफ साफ लिखा है P इज द ब्रदर ऑफ Q. तो T का जेंडर इवन इफ मेंशन नहीं है बट P और T दोनों मिल जाते हैं. दोनों ही स्टेटमेंट को कंबाइन करने से P और T दोनों का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और साथ में P का जेंडर भी पता है. तो वी कैन फॉर श्योर 100% विदाउट अरेंजिंग इट, हमें आंसर नहीं निकालना, हमें पता लगाना कि कितना स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा. दोनों को मिलाते ही वी आर श्योर दैट बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट. बिकॉज P एंड T सब दोनों का इन्फॉर्मेशन ही मिल गया एडिशनली. ठीक है, क्योंकि कनेक्ट भी कर रहा है ना साथ में. इन्फॉर्मेशन मिलने से मतलब ये P को Q से कनेक्ट किया,
Q को S से कनेक्ट किया और S को कनेक्ट किया यहाँ पे T से, तो S दोनों में कॉमन है, तो P एंड T बोथ आर रिलेटेड नाउ एंड P का जेंडर ही पता है, तो फॉर श्योर बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट. ओके, नेक्स्ट वन, proposal and argument are given and question asking whether the argument is weak argument or a strong argument and which should be the reasoning behind that. Proposal is to reduce the plastic waste. The government should ban single-use plastic bags. And argument is this ban will fail because people will simply buy thick plastic garbage bags to line their bins, which use more plastic per bag than the thin grocery bags. The proposal है to reduce plastic waste and government should ban single-use plastic bags. Argument कह रहा है this ban will fail because people will simply buy thick plastic garbage bags to line their bins which use more plastic per bag than the thin grocery bag. First option A, that argument is weak because it ignores the reduction in littering. That may be fine कि this may result in reduction of littering, but the problem is कि हमारा proposal का intent क्या है to reduce plastic waste. तो क्या plastic waste reduce हुआ? वो तो नहीं हुआ ना, तो reduction in littering is not relevant, so this is incorrect. Because intent of the proposal is to reduce plastic waste and not reduction in littering. So जो intent है वो तो solve अगर नहीं हो रहा है तो that is not justifying. तो option A is not correct. Option B is strong because it points out a substitution effect that negates the primary goal. This makes sense because it is pointing out that even when single-use plastic bags are banned, people will be using thick plastic garbage bags and that those will be resulting in more use of plastic per bag. So makes sense, substitution effect is there. ऑप्शन सी, वीक बिकॉज गार्बेज बैग्स आर बायोडिग्रेडेबल. क्या ये कहीं पे भी हमारे प्रपोजल या आर्ग्यूमेंट में मेंशन किया है कि गार्बेज बैग्स आर बायोडिग्रेडेबल? दैट इज नॉट मेंशन, so that is not correct. Option D is strong because bans never work in free markets. Now again this is very generalization. Generalize कर दिया स्टेटमेंट को कि bans never work in free markets. Not correct. Option B will be the answer, that the argument is strong because it points out a substitution effect that negates the primary goal. क्या ये क्लियर है? ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, मैनेजरियल एबिलिटी. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, a video of your company's product catching fire has gone viral. The many in engineering team are almost sure it is a counterfeit product, not yours, but there is still a doubt that it could be a rare battery defect. Which combination of actions is the most appropriate initial response? So a video is going viral, your company's product is catching fire. In that video, the many in the engineering team are almost sure, not 100% sure, but almost sure it is a counterfeit product, not yours. But there is still a doubt that it could be a rare battery defect. Which combination of actions is the most appropriate initial response? First one, issue a denial stating it is a counterfeit product to stop the stock price fall. अब you are almost certain some of them, but there is still quite doubt. So issuing a denial is not the right strategy for that because you are not sure. Recalling all products immediately again is not the right strategy because you are not sure. It might be a counterfeit product, तो अपने products को recall करना is not the right strategy for sure. Third one, issue a holding statement acknowledging the video, urging caution and announcing an immediate forensic investigation. Makes sense that you are issuing a holding statement acknowledging the video, urging the caution and announcing an immediate forensic investigation to find out whether that was your product or not. And last one, privately contact the user who posted the video to buy their silence. Again, not right. Third is the best option, that only third should be exercised. Okay. First तब करते जबकि श्योर होते, if there was certainty that yes, that is a counterfeit product. और second का भी सेंस तभी बनता था. So definitely third will be the answer. Only third should be exercised. Next one, you are a regional manager. You discovered that your best sales director who just closed the year's biggest deal achieved it by promising a feature that is currently on the roadmap but not guaranteed for release. Currently on the roadmap, but that is not guaranteed for release. And the biggest deal of the year is closed by the best sales director based on that. So what should you be doing? Cancel the deal immediately to preserve integrity. Cancelling the deal immediately, not the right thing as such. Fire the sales director for lying. Option C, inform the client about the uncertainty of the feature and offer a penalty clause if it's not delivered while reprimanding the director. That makes sense. You are reprimanding the director for promising something that is currently on the roadmap but not guaranteed for the release, and also informing the client about the same, about the transparency that yes, that is there on the plan but is not yet released, about the uncertainty of the feature, and additionally offering a penalty clause.
That is complete transparency with the client, and C is the best answer. Also reprimanding the director. D, push the product team to prioritize that feature at all costs to save the deal. प्रोडक्ट टीम के तो बेचारों की कोई गलती नहीं है, ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज करने को बोलो कि फीचर ऑल एट ऑल कॉस्ट. So that might not always be possible. So D will not be the correct answer. C is the best option among given options. Okay. Next one. In the game theory, a situation where two parties acting in their own self-interest and end up in a worse state than if they had cooperated is known as which of the following? A situation where two parties acting in their own self-interest end up in a worse state than if they had cooperated is known as which of the following? Nash equilibrium, the prisoner's dilemma, zero-sum game, या फिर Pareto efficiency. The answer for this question is that is known as prisoner's dilemma. ठीक है, एक बार अच्छे से समझते हैं prisoner's dilemma को, और फिर बाकी ऑप्शंस को भी समझेंगे, Nash equilibrium को भी, zero-sum game को भी, और Pareto efficiency को भी. ठीक है. For example, there are two prisoners, A and B. And they committed a crime together. They have committed a crime together. Now police nabbed both of them, और फिर उनको ले जाके सेपरेट रूम में बिठाया. ठीक है. They both are kept in separate rooms. Now police gave them an offer. ऑफर ये दिया कि तुम कन्फेस कर लो तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी. ठीक है. अगर दूसरे पर्सन ने कन्फेस नहीं किया, तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी, उसको सजा मिलेगी. बट अगर दोनों ने कन्फेस कर दिया तो अलग प्रॉब्लम होगा. तो यहां पे समझते हैं इसको. ठीक है. लेट अस से इफ बोथ कन्फेस, in that case both will have to serve 5 years in prison. If neither confesses, कोई भी कन्फेस नहीं करता, then in that case they will be serving 1 year in prison. And if one confesses, then the person who is confessing will be spending 0 years in prison and the other person will be spending 10 years in prison. तो कहां पे बेनिफिशियल होगा? If both are confessing, 5 years in prison for both of them. If neither is confessing, then both will be serving 1 year in prison. And if one of them is confessing, then the person confessing will be scot-free, will not be serving any punishment at all, and the second person who is not confessing will be serving 10 years in jail. क्या ये क्लियर है? ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे बेस्ट बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट कहाँ पे होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है कि दोनों ही कन्फेस ना करें, नीदर कन्फेसेस, इन दैट केस बोथ विल बी सर्विंग 1 year इन प्रिजन. दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. बट प्रॉब्लम क्या है? बोथ आर केप्ट इन सेपरेट रूम्स. तो आपस में कोऑपरेट तो कर नहीं सकते. पहले को नहीं पता, दूसरा ए को नहीं पता कि बी क्या करेगा, बी को नहीं पता ए क्या करेगा. यही है प्रिजनर्स का डायलेमा. कि प्रिजनर का डायलेमा अब ये है, ए डज नॉट नो कि व्हाट बी विल बी डूइंग. इफ फॉर एग्जांपल ए डज नॉट कन्फेस, for example A does not confess but B confesses, in that case A will be serving 10 years in jail. That is the problem with A. So A will be thinking, if I confess, then even in the worst case scenario I will be serving 5 years. But if I do not confess, then in the worst case scenario I will be serving 10 years. And if I confess, then the best case scenario I will be serving 0 years. But if I do not confess, in that case अगर उसने भी confess नहीं किया तब तो 1 year हो जाएगा, but otherwise 10 years हो जाएगा. So high chances are that both of them will end up confessing because of that. Because confessing will be more profitable than not confessing for them. Okay, तो scenarios को discuss कर लेते हैं एक बार. For A and B, let us say this is about A, this is about B. First case silent, second case confess. Similarly for B, silent and confess. So if both are silent, A as well as B both are silent. ठीक है. पहले हम A का पनिशमेंट लिखेंगे, बाद में B का पनिशमेंट लिखेंगे. So if both are silent, in that case क्या होगा? Both are silent, neither confesses, 1 year in prison for both. If A is silent बट बी इज वायलेंट, बी कन्फेस कर देता है. ए साइलेंट है बट बी कन्फेस कर देता है, तो क्या होगा? ए साइलेंट रहा, बी ने कन्फेस किया, बी का पनिशमेंट 0 हो जाएगा. बट ए विल बी पनिश्ड फॉर 10 years. एंड इफ
ए कन्फेसेस बी साइलेंट, तो बी साइलेंट है, बी का पनिशमेंट विल बी 10 years, बट ए का पनिशमेंट विल बी 0. एंड इफ बोथ ऑफ देम कन्फेस, देन बोथ विल बी punished with 5 years in jail. So chances are that both will be confessing in this case because both cannot cooperate. They are in separate rooms. So both cannot cooperate. Best solution क्या होगा? When both are silent, nobody confesses. This will be best outcome, most favorable outcome. But since they cannot cooperate, most likely outcome is this one. Both will be ending up confessing. This is most likely outcome. Which will happen. Okay. And this is the prisoner's dilemma in basic sense, and this is also this particular condition when both are confessing, most likely outcome, this is also called Nash equilibrium, और this in this case is Nash equilibrium. अब समझते हैं Nash equilibrium क्या होता है and why will this be Nash equilibrium. Nash equilibrium is a situation where the one person, for example हम A के डायमेंशन से सोचते हैं कि A is the person, ठीक है, A and B both confessed and that is why both will be serving 5 years in jail. बट A अगर सोचे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए अगर ये सोचे कि लेट अस से इंस्टेड ऑफ कन्फेसिंग आई शुड स्टे साइलेंट, अगर ए ये सोचता है कि आई शुड स्टे साइलेंट, ठीक है, ए ने अपने एंड पे सिर्फ अपने एंड पे सोचा, ठीक है, ए थॉट दैट इंस्टेड ऑफ कन्फेसिंग आई शुड स्टे साइलेंट, तो बी का डिसीजन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बी का डिसीजन जो है वही रहा, बट ए ने अपना डिसीजन चेंज किया. सो इफ ए चेंजेस हिज ओन डिसीजन, बी कन्फेसेस बट ए इज स्टेइंग साइलेंट, तो क्या होगा इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट यहां पे आ जाएगा मामला दैट ए विल बी पनिश्ड विद 10 years एंड बी विल नॉट बी पनिश्ड, यानी कि इंस्टेड ऑफ 5 years सर्विंग 5 years इन जेल, ए विल बी सर्विंग 10 years इन जेल बिकॉज ऑफ चेंजिंग हिज डिसीजन. तो इफ ए चेंजेस हिज डिसीजन, ही विल बी वर्स ऑफ, यानी कि ए का नुकसान हो जाएगा अगर वो अपना डिसीजन चेंज करता है. सिमिलरली अगर बी ऐसा सोचता है तो बी का नुकसान हो जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली फिर हम इस डब्बे पे आ जाएंगे 0,10, यानी कि ए कन्फेस कर रहा है, बी कन्फेस ना करे, साइलेंट रहे, और अगर बी साइलेंट रहा तो बी को पनिशमेंट 10 years का हो जाएगा, बट ए स्कॉट फ्री हो जाएगा. तो जो भी डिसीजन अपना चेंज करेगा वो नुकसान में जाएगा. तो दैट इज वाई दिस इज Nash equilibrium. Nash equilibrium is state of solutions where if one party changes his own decision, ठीक है, देन इन दैट केस ही विल बी डेफिनेटली वर्स ऑफ. अगर दोनों पार्टीज डिसीजन चेंज करेंगे तब तो फायदा है दोनों का, बट वो तो होगा नहीं, एक पार्टी अपना डिसीजन चेंज करती है, सो डेफिनेटली दे विल बी वर्स ऑफ. दैट इज व्हाट इज Nash equilibrium. That is why 5,5, this case when both are confessing, this is the Nash equilibrium case. Okay, and that is also most likely outcome of the prisoner's dilemma wala case. So Nash equilibrium is the equilibrium state where if one party changes his own decision, in that case they will be worse off instead. That is why they will not be changing the decision. Okay, clear है. तो ये तो हो गया अपना Nash equilibrium. प्रिजनर्स डायलेमा होगा. जीरो सम गेम क्या हुआ कि एक साथ फॉर एग्जांपल कहीं पे 100 रुपीज रखे हुए हैं, 5 लोगों में बांटने हैं. अब अगर 100 रुपीज है, जीरो सम गेम यानी कि कुछ भी जो टोटल सम है वो हमारा सेम है, टोटल पे ऑफ इज सेम. So let us say there are 100 rupees in total and they are to be distributed between two persons. मान लेते हैं 2 persons A and B. So either you give them both equal amount 550 and 50. ये केस हो सकता है. अब अगर तुम एक भी रुपए कम करते हो A का, if A is getting let us say 40 rupees, so B will be getting 60. अब अगर B को ज्यादा अमाउंट देना है तो A को कम देना पड़ेगा क्योंकि टोटल अमाउंट तो अनचेंज्ड है. दैट इज वाई इफ वन पर्सन इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड तो सेकंड का लॉस होगा. वन पर्सन गेन implies second's loss or others loss. If there are more than 2 persons, if there are 5 persons, let us say, if any one of them is getting benefited, तो किसी और का लॉस हो रहा होगा because total payoff is going to be constant. That is what is zero sum game. One person's gain will always be some other person's loss in such a case. Okay. और पैरेटो एफिशिएंट आउटकम क्या होगा? पैरेटो एफिशिएंसी या पैरेटो एफिशिएंट आउटकम इसको समझते हैं. ओके, लेट अस से मैं हूं और तुम हो, ठीक है, अगेन ए एंड बी. ए हैज पिज्जा ब्रेड, ए के पास पिज्जा ब्रेड है और बी के पास है टॉपिंग्स, चीज एंड सीजनिंग्स. ए के पास है पिज्जा ब्रेड और बी के पास है टॉपिंग्स, चीज और सीजनिंग्स. अब अगर उन्हें पिज्जा खाना है तो दोनों चीजें चाहिए, पिज्जा ब्रेड भी चाहिए, टॉपिंग्स भी चाहिए, चीज भी चाहिए, सीजनिंग भी चाहिए. तो दे बोथ नीड ईच अदर. एट प्रेजेंट ए हैज पिज्जा ब्रेड, बी हैज टॉपिंग्स, चीज एंड सीजनिंग्स.
तो दे कैन नॉट कंज्यूम दीज थिंग्स अलोन। अकेले नहीं खा सकते, अकेले मजा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, बोथ नीड कोऑपरेशन। तो एट प्रेजेंट थिंग्स विद ए आर पैरेटो इनएफिशिएंट, यानी कि उनको आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दे हैव इंसेंटिव फॉर ट्रेडिंग, दे कैन कोऑपरेट, बिकॉज कोऑपरेट करेंगे तो पिज्जा बना पाएंगे तो उसको खा पाएंगे। सो दैट इज वाई ए एंड बी कैन कोऑपरेट। एट प्रेजेंट जो उनके पास आइटम्स हैं, दीज आर पैरेटो इनएफिशिएंट। अब ए और बी ने क्या किया, ए ने बी को थोड़ा सा, ए ने बी से कहा चलो साथ में पिज्जा बनाते हैं और फिर आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो ये सिनारियो बना, दोनों के बीच में कॉपरेशन हुआ, कॉपरेशन के बाद में अल्टीमेटली उन्होंने आपस में पिज्जा बना के बांट लिया। ओके, अब अल्टीमेटली ये हुआ कि आफ्टर कोऑपरेशन दोनों के पास हाफ हाफ आइटम आ गया, यानी कि दोनों ने अपना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब ऐसे स्टेट पे पहुंच गए कि आधा पिज्जा ए के पास है सब कुछ बनाने के बाद में, और आधा पिज्जा बी के पास है। अब ये जो लास्ट स्टेज आया जहां पे कि बोथ हैव इक्वल आइटम्स, यानी कि नाउ दे कैन नॉट एक्सचेंज आइटम्स, बिकॉज अब जरूरत नहीं है। अब अगर ए ने बी को कुछ आइटम दिया, ठीक है, ए के पास पूरा पिज्जा में से आधा आ गया, बी के पास भी आधा आ गया। अब अगर ए बी को कुछ देता है तो ए का नुकसान होगा, बी ए को कुछ देता है तो यानी कि अब हम पैरेटो एफिशिएंट क्या हुआ, पैरेटो एफिशिएंसी हो गया कि दैट स्टेज आफ्टर विच नो ट्रेडिंग इज नीडेड। स्टेट आफ्टर विच नो ट्रेडिंग इज नीडेड बिटवीन द टू, यानी कि पैरेटो एफिशिएंसी स्टेट इज दैट स्टेट कि जिसके बाद में अब कोई भी ट्रेडिंग वो करेंगे तो पैरेटो इनएफिशिएंट पे जाएंगे, यानी कि अब उससे परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, एक प्रॉपर परफेक्ट सॉल्यूशन में पहुंच गए वो। दैट इज पैरेटो एफिशिएंट। और उसके अलावा कुछ भी है जो, वो सब कुछ पैरेटो इनएफिशिएंट है। ओके, इट कुड बी एनीथिंग, बट ये सिंपल एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए बोला कि ए के पास पिज्जा ब्रेड है, बी के पास टॉपिंग्स है, दोनों आपस में ट्रेड करेंगे, कॉपरेट करके अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन में पहुंचेंगे जहां पे अल्टीमेटली दे हैव पैरेटो एफिशिएंट आउटकम, कि दोनों के पास इक्वल इक्वल है। अब इसके बाद में ए कुछ भी बी को देता है तो ए के पास कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए को देने में नुकसान है, लॉस है, और बी को कुछ भी ए को देता है तो बी का नुकसान हो जाएगा, बी के पास कम हो जाएगा। दैट इज वाई दैट स्टेट इज पैरेटो एफिशिएंट स्टेट व्हेन एनी एडिशनल ट्रेडिंग विल बी इन लॉस, विल बी लॉस फॉर अ पर्सन। ओके, so that is what is Pareto efficient state. क्लियर हो गया यहाँ पे। तो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर वॉज प्रिजनर्स डायलेमा। दो दैट पर्टिकुलर स्टेट जो हमने डिस्कस किया, दिस स्टेट मोस्ट लाइकली आउटकम विच हैपन्स इन दिस केस, दैट इज ऑल्सो नैश इक्विलिब्रियम स्टेट। तो नैश इक्विलिब्रियम हमेशा जरूरी नहीं कि वो फेयर हो, इट कुड ऑल्सो बी अनफेयर और अनइक्वल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अनफेयर हो, ठीक है, अनफेयर हो सकता है बिकॉज मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है हमारा जबकि दोनों साइलेंट रहें। बट दिस इज नॉट नैश इक्विलिब्रियम। क्यों नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपना पर्सन, एक पर्सन को अपना डिसीजन चेंज करता है तो उसकी वजह से उसका नुकसान नहीं होगा, ही विल बी बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट इफ ओनली वन पर्सन चेंजेस हिज डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस स्टेट पर रहें इन द मोस्ट फेवरेबल आउटकम, एंड इफ ए चेंजेस हिज डिसीजन एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग साइलेंट ए कन्फेसेस, तो अगर ए कन्फेस करेगा तो क्या होगा, ए का पनिशमेंट जीरो हो जाएगा, तो ही विल बी बेनिफिटिंग ओनली बाई चेंजिंग हिज ओन डिसीजन। दैट इज वाई दिस स्टेट इज नॉट साइलेंट बोथ साइलेंट इज नॉट अ नैश इक्विलिब्रियम। बट 5,5 दिस इज द नैश इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे अगर एक पर्सन अपना डिसीजन चेंज करता है विदाउट द अदर पर्सन चेंजिंग द डिसीजन, देन डेफिनेटली ही विल बी वर्स ऑफ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Your factory is facing a supply shortage of raw material X. You have three options: buy from the spot market at 2x price, stop production and wait for the contract supplier, and use a cheaper substitute material Y for the time being that lowers quality slightly. So which statement of the following is correct? पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑप्शन 3 इज अ टाइप ऑफ जस्ट इन टाइम फेलियर। जस्ट इन टाइम क्या है, ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में डिस्कस किया। जस्ट इन टाइम इज दैट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जहां पे कि हम जो भी आइटम्स मंगा रहे हैं वो जस्ट इन टाइम मंगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे ही कोई आइटम खत्म होने वाला होगा तुरंत मंगाया वैसा, ठीक है। तो इन दिस केस स्टोरेज कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बिकॉज इन्वेंट्री नहीं रखना है, स्टोरेज नहीं रखना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जरा सा भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस फेसिंग अ सप्लाई शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्स, जस्ट इन टाइम में ये प्रॉब्लम तो आएगा, ठीक है, आ सकता है, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट तुम्हारा रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टोरेज तुमने रखा ही नहीं है। बट प्रॉब्लम जस्ट इन टाइम में थोड़ा भी टाइम में डिले हुआ तो सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा, तुम्हें या तो प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ेगा या फिर पौने पौने दाम पे खरीदना पड़ेगा, या फिर मतलब कॉस्टली खरीदना पड़ेगा कि इधर यू विल बी बाइंग एट 2x द प्राइस 3x द प्राइस, बिकॉज तुम्हें अल्टीमेटली अपना प्रोडक्शन स्टॉप तो नहीं करना है ना। दैट इज वाई यू विल बी बाइंग एट 2x द प्राइस और डबल द प्राइस और ट्रिपल द प्राइस। सो दैट इज वॉट इज जस्ट इन टाइम फेलियर। Okay, option 3 is not a just in time failure. That is incorrect. Option 1 is a just in time failure because you have to buy from the spot market at 2x price because there was a supply shortage. Option 1, this is a just in time failure example. तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकंड कह रहा है ऑप्शन 3 प्रोटेक्ट्स ब्रांड इक्विटी बट हर्ट्स मार्जिन। ऑप्शन 3 कह रहा है यूज अ चीपर सब्स्टिट्यूट मटेरियल वाई
For the time being, that lowers quality slightly. So if that is lowering quality slightly, so due to this क्या होगा हमारा, क्या मार्जिन हर्ट होगा? मार्जिन हर्ट नहीं होगा बिकॉज दैट इज अ चीपर सब्स्टिट्यूट. तो मार्जिन तो हर्ट नहीं होगा, ठीक है, प्रॉफिट्स तुम्हारे हर्ट नहीं होंगे. बट क्या हर्ट होगा इसकी वजह से? ब्रांड इक्विटी को फर्क पड़ेगा. ब्रांड इक्विटी फॉर द टाइम बीइंग विल बी हर्ट फॉर श्योर. तो बिकॉज ऑफ थर्ड, brand equity will be hurt, but margins will not be hurt. Margins will remain or same or increase because of the second option. Second में क्या हो रहा है? You are stopping the production. तो यहाँ पे तो खैर सभी को नुकसान है. In the first option, you are buying from the spot market at 2x price, double the price. तो margins hurt होंगे. Margins hurt होंगे, but brand equity will not be hurt because you are making ultimately the same product, same quality product. तो brand equity will not be hurt. Margins will be hurt इन द फर्स्ट केस. और जबकि हमें कह रहा है ऑप्शन 1 हर्ट करता है, यानी कि ऑपोजिट लिखा हुआ है. तो ना तो सेकंड करेक्ट है, ना ही बी करेक्ट है, ना ही सी करेक्ट है. बोथ आर इनकरेक्ट बिकॉज ऑप्शन 3 हर्ट्स ब्रांड इक्विटी बट प्रोटेक्ट्स मार्जिन, व्हाइल ऑप्शन 1 प्रोटेक्ट्स ब्रांड इक्विटी बट हर्ट्स मार्जिन. तो बोथ आर इनकरेक्ट इन दैट केस. ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट ऑप्शन 3 इज द बेस्ट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन. अब ये दिमाग में आ सकता है जब ऑप्शन 3 में हम कह रहे हैं यूज अ चीपर सब्स्टिट्यूट मटेरियल वाई फॉर द टाइम बीइंग, और इसकी वजह से हमारा ब्रांड इक्विटी हर्ट होगा, तो ये कैसे बेस्ट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा? ये इसलिए शॉर्ट टर्म बेस्ट सॉल्यूशन होगा बिकॉज हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं. यू आर यूजिंग अ चीपर सब्स्टिट्यूट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द टाइम बीइंग, नॉट फॉर ऑलवेज. नॉट फॉर ऑलवेज, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक हमारे पास मटेरियल एक्स फिर से नहीं आ जाता. तो ओनली फॉर दैट टाइम यू आर यूजिंग अ चीपर सब्स्टिट्यूट मटेरियल वाई, एंड आफ्टर दैट यू विल बी again making the same quality product. So for the time being you can do that. Option 3 is the best short term solution because option 1 में तुम्हें डबल प्राइस पे परचेज करना है, कॉस्ट तुम्हारा बढ़ेगा. So that is why option 3 is the best short term solution. Okay. भाई शॉर्ट टर्म में तुमने क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड किया, उसके बाद फिर से क्वालिटी वैसा ही कर दिया. तो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A male senior manager reports that a junior female employee is too aggressive in meetings. You observe her and find she is simply assertive and direct, similar to her male peers. So senior manager is reporting that she is too aggressive, while in actuality when you observe her you find she is simply assertive and direct, similar to other male peers. So you advise her to tone it down to fit the culture. Does not make sense because she is as good as the other male employees. Advising the senior manager to check his unconscious bias and provide examples of her male peers behaving similarly. That makes sense. Option C, move her to a different team to avoid conflict. Moving her to a different team is not right because एक तरह से तुम उसको पनिश कर रहे हो, जबकि you have a better option, तो you will be doing option B first. अगर उसके बाद भी काम नहीं बनता है then you can opt for option C, but B is better than C. D कह रहा है ignore the complaint, you will never be ignoring the complaint, तो B is the best answer. If B does not work, then you can move her to a different team in that case. But otherwise B should be done. Okay. या फिर B नहीं वर्क करता तो सीनियर मैनेजर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है. Depends on the condition. But in this case, for example, B is the best solution. Next question. Tendency of an organization to promote employees based on their performance in their current role rather than their ability to perform the new role, eventually resulting in them reaching a level where they are incompetent, is called which of the following? Dunning-Kruger effect, the halo effect, Peter principle, or Parkinson's law. Tendency of an organization to promote employees based on their performance in the current role. Current role में अच्छा परफॉर्म किया तो they are promoted. फिर current role में अच्छा परफॉर्म किया they are promoted. फिर current role में अच्छा परफॉर्म they are promoted. But the problem with this particular thing is that you are not checking them for the performance in the new role. Isn't it so? So they might be incompetent for the new role. Actually में प्रमोट करते समय पे क्या सोचना चाहिए था कि whether they will be competent for the new role or not. But that is not being checked. You are only judging their performance in the current role. So that is why after some time eventually it will result in them reaching a level where they are incompetent, and this is called Peter principle. This is Peter principle. Okay. Halo effect is judging a person based on one particular good quality. एक क्वालिटी अच्छी है और उसके बेसिस पे हमने जज किया कि आदमी भी अच्छा होगा. हो सकता है एक क्वालिटी किसी के अंदर अच्छी हो बट बाकी सारी क्वालिटीज घटिया हो. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो हेलो इफेक्ट इज बेसिकली जजिंग अ पर्सन बेस्ड ऑन वन गुड क्वालिटी. हेलो ऑफ वन गुड क्वालिटी. ठीक है. डनिंग-क्रूगर इफेक्ट is basically judgment of mediocre people, cognitive bias of mediocre people and judging themselves on higher basis. है कि नहीं? जो हमने कल डिस्कस किया था, ग्राफ इज सिमिलर लाइक दिस, एक्सपीरियंस एंड
कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस इन देयर कैपेबिलिटीज, ओवर कॉन्फिडेंस, डाइनिंग क्रूगर इफेक्ट, DK इफेक्ट. This is overconfidence of average people in their abilities. Last one, Parkinson's law. Parkinson's law is basically that work fits the time available. तो अगर टाइम ज़्यादा अवेलेबल है तो वर्क भी ज़्यादा समय खाएगा. For example, a work needs only 2 hours, but you have 5 hours. तो that work will be taking 5 hours. बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम अवेलेबल है तो उतने कम टाइम में भी वो वर्क किया जा सकता है. तो मेनी टाइम्स a work that needs only a limited amount of hours, but you have more time, तो you will be definitely taking that much time. Isn't it so? जैसे एग्जाम के टाइम में नहीं कई बार होता है कि तुम्हारे पास एक एग्जाम है 2 दिन बाद, अब तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम अवेलेबल है, तो यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ऑल 2 days फॉर श्योर. ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे. बट यही 2 दिन के बजाय 20 दिन का टाइम हो जाएगा तो क्या करोगे? पहले 18 दिन मक्कारी करोगे और फिर लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे वहाँ पे पढ़ाई करोगे. तो कहानी वही है, पढ़ना उतना ही है तुमको, टाइम ज़्यादा मिल गया तो अल्टीमेटली द वर्क विल बी फिटिंग दैट पर्टिकुलर टाइम अवेलेबल. दैट इज व्हाट इज पार्किंसंस लॉ. ओके, सो दिस थर्ड सेक्शन इज ऑल्सो डन. लास्ट सेक्शन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी. First question, A, B, and C can complete a piece of work in 10 days, 12 days, and 15 days respectively. They started the work together. However, A left the work 5 days before the completion of the work and B left 2 days after A had left. So how many days in total did the work last? A, B, and C, 10 days, 12 days, and 15 days. तो LCM ले लो, 10, 12, 15 का वर्क आ जाएगा हमारा 60. So total work comes out to be 60. And if work is 60, the efficiency of A will be 6 units, of B will be 5 units, of C will be 4 units. So A can work 6 units in a day, B 5 units in a day, and C 4 units in a day. However, A ने 5 दिन पहले, काम खत्म होने के 5 दिन पहले लीव कर दिया. तो A left the work 5 days before the completion of the work. तो क्या करेंगे ऐसे केस में? 60 was the total work. बट अगर A ने 5 दिन पहले लीव किया तो हम A से कहेंगे 5 दिन और काम कर लो और वो जो एक्स्ट्रा काम है उसको हम ऐड कर देंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, ए का जो एक्स्ट्रा वर्क है 5 डेज का, क्योंकि एक्चुअल वर्क तो 60 ही हुआ है, बट हमें अपने केस को सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, ए से कहेंगे 5 दिन और काम कर लो, उसका एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा उसको. ए 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 डेज का वर्क, और इफ ए विल बी 5 into 6, बिकॉज 1 डे वर्क इज 6, तो 5 into 6 प्लस बी लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट, यानी कि 3 days बिफोर कंप्लीशन. देखिए ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर कंप्लीशन, तो 5 minus 2, 3 days बिफोर कंप्लीशन बी मस्ट हैव लेफ्ट. तो बी से भी कहेंगे 3 दिन और काम कर लो. बी 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 into 5. तो दिस विल बी आवर टोटल वर्क, और डिवाइड कर देंगे ए बी सी, अब तीनों पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई ए का एफिशिएंसी प्लस बी का प्लस सी का, तो 6 + 5 + 4, दैट विल बी आवर आंसर. तो 60 + 30, 90 + 15, 105/15, आंसर विल बी 7 days. इन टोटल 7 days लगेंगे कंप्लीट होने में. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर? ठीक है, सेकंड केस हो सकता है, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं x डेज में वर्क कंप्लीट होगा, तो ए वर्क कितने दिन कर रहा है? ए इज वर्क लीविंग द वर्क 5 days बिफोर, x - 5 days the work of A, 6 into x - 5, plus B is leaving 2 days before, 2 days after A had left, यानी कि x - 3, तो 5 into x - 3, और लास्ट में C तो पूरा ही वर्क कर रहा है, प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू 60. तो 6x + 5x + 4x, 15x इज इक्वल टू 60 + 30 + 15. ओके, आंसर आ जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel contains 100 liters of pure milk, 10 liters are removed and replaced with water, then 20 liters of mixture are removed and replaced with water, and finally 25 liters of the mixture are removed and replaced with water. What is the final quantity of milk in the vessel? तो इनिशियली 100 लीटर्स प्योर मिल्क है, और फाइनली हम 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं. 10 लीटर्स को रिमूव कर रहे हैं, फिर 20 लीटर्स रिमूव कर रहे हैं, और फिर इसके बाद 25 लीटर्स को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव एंड रिप्लेस कर रहे हैं हर एक बार. ठीक है, तो इनिशियली 100 लीटर्स प्योर मिल्क है. इन द फर्स्ट प्रोसेस 10 liters is removed out of 100, देखिए 1/10 is removed, remaining will be 9/10. सेकंड स्टेप 20 liters is removed out of 100, यानी कि 20/100, 4/5 बचेगा, 1/5 को रिमूव कर दिया. इन द लास्ट स्टेज 25 liters is removed out of 100, यानी कि 1/4 को रिमूव कर दिया, बचेगा 3/4. तो दिस विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइनली. 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 50 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 into 9, 18 into 3, 54 liters विल बी द आंसर. क्योंकि क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है? मिल्क के बारे में पूछा. मिल्क हमारा 54 होगा, अगर वाटर पूछता 46 होता. वाटर विल बी 100 - 54, 46 liters. ओके, और कैलकुलेशन हमेशा उस क्वांटिटी में करेंगे जिसको कि हम रिप्लेस करते टाइम नहीं पुट करेंगे, क्योंकि रिप्लेस हम वाटर से कर रहे हैं, दैट इज वाई कैलकुलेशन हम मिल्क में करेंगे. ओके,
फिर अगर कहीं भी बीच में आ जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट स्टेप होता हमारा, पहले दो स्टेप सेम रहते पर लास्ट स्टेप में हो जाता कि लास्ट में फाइनली 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद मिल्क, तब चीज़ बदल जाती है हमारी, तब फिर हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है। तब फिर पहले स्टेज में पता है इनिशियली 100 लीटर्स प्योर मिल्क है, नाउ 9/10 विल बी रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट प्रोसेस, आफ्टर द सेकंड प्रोसेस कितना बचेगा 4/5। बट इसके बाद में आफ्टर द सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में वी आर रिमूविंग 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर एंड रिप्लेसिंग इट विद मिल्क, क्योंकि अब हम मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं तो अब कैलकुलेशन मिल्क में नहीं कर पाएंगे, अब हमें कैलकुलेशन वाटर में करना पड़ेगा। तो इसके बाद में हमें सॉल्यूशन पहले निकालेंगे कितना हमारे पास मिल्क है कितना वाटर है, तो बचेगा क्या 18 इंटू 4 72 लीटर्स, यानी कि नाउ इन द मिक्सचर 72 लीटर्स मिल्क इज देयर एंड 28 लीटर्स वाटर है हमारे पास। तो अब थर्ड स्टेप को कैलकुलेट करेंगे वाटर के अकॉर्डिंग, बिकॉज नाउ वी आर रिप्लेसिंग इट विद मिल्क। तो कैलकुलेशन वाटर में करेंगे, वाटर बचा है 28 एंड नाउ वी आर रिप्लेसिंग 3/4, 1/4 को रिप्लेस करें 3/4 बचेगा 28 इंटू 3/4, तो 3/4 वाटर विल बी रिमेनिंग, तो वाटर कितना बचा 28 इंटू 3/4 यानी कि 21 लीटर्स। तो फाइनली 21 लीटर्स वाटर होगा और रिमेनिंग 100 माइनस 21 यानी कि 79 लीटर्स मिल्क होगा। तो यहाँ पे हमें दो स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है हम रिमूव करके मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहाँ पे हर एक स्टेप पे हम वाटर से ही रिप्लेस कर रहे थे, तो फिर हमने एक साथ सारा कैलकुलेशन कर लिया। बट अगर ऐसा होता है तो फिर ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, a dishonest shopkeeper cheats by 10% while buying from the supplier and cheats by 10% while selling to the customer. He also marks up his goods by 10%. What is his overall profit percentage? So he cheats by 10% while buying from the supplier. जब सप्लायर से परचेज कर रहा है तब चीट कर रहा है 10% से, तो यानी कि सप्लायर से लेना चाहिए था 1 kg, बट ले कितना रहा है 1100 ग्राम्स, दैट इज द चीटिंग। तो 10:11 का रेशो आएगा, बिकॉज ही इज एक्चुअली पेइंग 10 रुपीज बट 11 रुपीज का आइटम उठा रहा है। वेन ही इज चीटिंग विद द कस्टमर, तो कस्टमर को देना चाहिए था 10, कस्टमर को अगर 1000 ग्राम्स देना था तो इंस्टेंट दे रहा है 900 ग्राम्स, यानी कि वहाँ पे क्या है कस्टमर से पैसा ले रहा है 10 रुपये बट उसको आइटम दे रहा है 9 रुपीज़ का ही, तो वहाँ पे कॉस्ट फॉर द शॉपकीपर इज 9 रुपीज़ एंड ही इज टेकिंग 10 रुपीज़, तो ये रेशियो बनेगा 9:10 का। डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। परचेज करने का व्हेन ही इज बाइंग फ्रॉम द सप्लायर एंड ही इज सेलिंग टू द कस्टमर। इन द लास्ट केस में क्या कर रहा है मार्कअप कर रहा है 10% से, यानी कि 10 रुपीज़ का आइटम 11 का चिपका रहा है, 11 का दे रहा है, तो दिस विल बी द नेट रिजल्ट। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 to 90 रुपीज़ का आइटम इज गिविंग इन 121 रुपीज़, so there is a profit of 31 rupees। 31 by 90 परसेंटेज में निकालना है इंटू 100, 310 by 9, तो 9 3 is 27, अच्छा 40, 9 4 is 36, 34 and 4 by 9, तो 34.44%, ऑप्शन डी will be the answer। Okay, next question, the ratio of the sums of the first n terms of two arithmetic progressions is 7n plus 1 is to 4n plus 27, to find the ratio of their 11 terms। उनके 11 टर्म का रेशियो क्या होगा? When sum of n terms is given, sum of n terms of first AP divided by sum of n terms of second AP, that is 7n plus 1 divided by 4n plus 27। तो sum of n terms का फॉर्मूला क्या होता है? That is n by 2 into 2a plus n minus 1 times d, और सेकंड के लिए होगा n by 2 into 2a plus n minus 1 times d। पहले वाले के लिए फर्स्ट टर्म मान लिया हमने a1 और कॉमन डिफरेंस d1, सेकंड के लिए मान लिया a2 एंड d2, तो n by 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में, बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट हमारा बच जाएगा। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म्स, या फिर nth टर्म का रेशियो चाहिए, समझ लो, ठीक है, किसी टर्म का रेशियो चाहिए। अब nth टर्म इन अ AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि दिस इज पीयर टर्म का रेशियो, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल में रेशियो क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d2। तो इफ यू डिवाइड बाई 2 तब फिर हमें कंपेरेबल चीज़ें मिल जाएंगी, डिवाइड कर दो 2 से ऑन बोथ साइड्स, न्यूमरेटर एज वेल डिनोमिनेटर, डिवाइड कर दिया ना 2 से, इक्वेशन बन जाएगा हमारा a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स d2। ओके, नाउ दिस शुड बी द टर्म दैट वी नीड, दिस शुड बी टर्म नंबर 11। अब अगर टर्म नंबर 11 है तो यानी कि a1
प्लस 10 टाइम्स d1 होगा, isn't it so? क्योंकि a1 प्लस 11 माइनस 1 टाइम्स d1, तो 10 शुड बी इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2, एंड इफ दैट इज सो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2, तो n माइनस 1 इज इक्वल 20, n इज इक्वल 21 आ जाएगा, एंड इफ दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल 21, तो पहले सीरीज का हमारा 11 टर्म और डिवाइड बाई सेकंड सीरीज का 11 टर्म का रेशियो हमें मिल जाएगा व्हेन वी आर पुटिंग n इज इक्वल 21। तो बस हमें ओरिजिनल इक्वेशन में ओरिजिनल रेशियो में n इज इक्वल 21 पुट कर देना है, आंसर मिल जाएगा। तो पुट कर दो, 21 इंटू 7 विल बी 147 प्लस 1 148 डिवाइड बाई 21 इंटू 4 84 प्लस 27 दैट इज 111, आंसर विल बी 4/3, 148 बाई 111, आंसर विल बी 4/3, ऑप्शन ए। ठीक है, तो लंबा तरीका हो गया, बट इन शॉर्ट समझ लो कि बेसिकली हमें क्या करना है कि n को रिप्लेस कर देना है 2n-1 से। n को रिप्लेस कर देना है 2n-1 से, ओके। यानी कि 21 से रिप्लेस कर दोगे तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा, क्लियर है। और या फिर ऐसे समझ सकते हो इस बात को कि अगर हमें 11 टर्म का रेशियो चाहिए, तो ऐसे समझो 11 टर्म हमारा क्या होगा, इफ वी हैव 11 टर्म्स इन टोटल, ठीक है, टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 2 प्लस टर्म नंबर 3 फिर टर्म 11, इनका एवरेज कहाँ पे आएगा, एवरेज विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, एवरेज आएगा फर्स्ट टर्म प्लस 11 टर्म बाई 2, इनका एवरेज विल बी टर्म नंबर 1 प्लस 11 बाई 2, तो टर्म नंबर 6 विल बी आवर एवरेज इन दिस केस, किसी भी एपी में। तो अगर हमें एवरेज हम बना लें समहाउ, टर्म नंबर 11 को अपना एवरेज बना लें, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है और फर्स्ट एज वेल एज सेकंड, तो सम को हम टर्म नंबर 11 अगर अपना एवरेज बना लें, टर्म नंबर 11 एवरेज कब बनेगा, जबकि हमारा स्टार्ट तो हम करें टर्म नंबर 1 से 1 प्लस n बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू टर्म नंबर 11, क्योंकि अगर ऐसा हमने बना लिया तो n हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस n बाई 2 इज इक्वल टू 11, तो n विल बी इक्वल टू 21, बिकॉज ऑफ दैट इज द केस n इज इक्वल 21 है, तो अगर 21 टर्म्स का सम हम निकालेंगे दैट विल बी 21 बाई 2 इंटू टर्म नंबर 11 इंटू 2 डिवाइड बाई 21 बाई 2 इंटू टर्म नंबर 11 इंटू 2, तो 21 बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें टर्म नंबर 11 का ही एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे n इज इक्वल 21 पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हमें ये बात समझ में आ जाएगी। अदरवाइज याद रखना 2n-1 से रिप्लेस कर दो और सॉल्व कर दो, क्या ही क्लियर है। बिकॉज अल्टीमेटली सम ऑफ एनी AP दैट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स, ये तो एक तरीका हो गया लिखने का, ठीक है, विच इज बेसिकली पहला टर्म प्लस n टर्म, या फिर इसको लिख सकते हैं कि n इंटू एवरेज, so that is what is term number 11 average multiplied by n, okay, clear है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a quadratic polynomial attains its minimum value at 5 at x equal to 3 if the graph of the polynomial passes through the point 0,23, what is the value of the polynomial at x equal to 6, x equal to 6 पर polynomial का वैल्यू क्या होगा when it is achieving the minimum value of 5 at x equal to 3। so if the graph of a quadratic is like this, भाई या तो ऐसा बनेगा अपवर्ड्स पैराबोला या अपवर्ड्स यू, और या फिर डाउनवर्ड्स पैराबोला डाउनवर्ड्स यू, ओके। इन ईदर केस इफ दिस इज अपवर्ड्स पैराबोला, सिंस यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है तो अपवर्ड्स पैराबोला होगा, इन दैट केस द पॉइंट एट विच इट अचीव्स मिनिमम वैल्यू, द ग्राफ इज सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट, isn't it so? So if this point is, let us say x1, तो x1 minus alpha, if this is one of the roots, the second root will be x1 plus alpha, या फिर फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव x1 माइनस a1 पे अगर कोई वैल्यू हमें मिल रहा है, ठीक है, फंक्शन का, तो सेम वैल्यू विल ऑल्सो बी एट x1 प्लस a1, बिकॉज ग्राफ इज सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड्स, हमें मिल रहा है ग्राफ सिमेट्रिक अराउंड x इक्वल टू 3, हमारे केस में ग्राफ इज सिमेट्रिक अराउंड x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू पता है 23 है, वैल्यू इज 23 एट x इक्वल टू 0, तो अगर x इक्वल टू 0 पे 23 है, x इक्वल टू 3 के अराउंड सिमेट्रिक है, तो 3 माइनस 3 इज 0, 3 प्लस 3 x इक्वल टू 6 पे भी वैल्यू 23 आएगा, और क्वेश्चन ने x इक्वल टू 6 पे वैल्यू पूछा है, तो आंसर स्ट्रेट अवे 23 आ जाएगा, बिकॉज ग्राफ इज सिमेट्रिक।
तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री का यूज़ करके हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या ही क्लियर है? फिर यहाँ पे हमें इक्वेशन बना के कैलकुलेशन और इक्वेशंस कई सारे बना के फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिमेट्री से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 3 पे वैल्यू मिनिमम है, तो एक्स इक्वल टू 3 के अराउंड हमारा ग्राफ सिमेट्रिक होगा। एक्स इक्वल टू 0 पे 23 है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे 23 है और 0 का 3 से गैप है 3 का, तो 3 + 3 यानी 6 पे भी वैल्यू हमारा 23 होगा। ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन बनाते हैं कि मानते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है लेट अस से फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन वी नो कि एट एक्स इक्वल टू 3 वैल्यू इज इक्वल टू 5, एट एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू इज 23। अगर 0 पे 23 है यानी कि f ऑफ x दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 23। x को 0 पुट करोगे तो हमारा इक्वेशन अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 23 आ जाएगा यहाँ से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 23, दिस इज अवर fx। देन वी नो मिनिमम वैल्यू आ रही है एट एक्स इक्वल टू 3, और मिनिमम वैल्यू आती है किसी भी ग्राफ की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी अपॉन 2a दिस इज इक्वल टू 3, तो माइनस बी इज इक्वल टू 6a या फिर b इज इक्वल टू माइनस 6a। पुट इट इन दिस इक्वेशन, तो ax स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 23 दिस इज इक्वल टू fx, और फिर हमें पता है x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 5 है, तो f3 शुड बी इक्वल टू 5, यानी कि 9a माइनस 18a प्लस 23 दिस इज इक्वल टू 5, तो 23 माइनस 9a इज इक्वल टू 5, सो 9a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा, सो fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर minus 12x plus 23. Now we can find out f of 6. F of 6 will be 2 into 36 minus 12 into 6 plus 23. तो 72 माइनस 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 23, आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तो लंबा तरीका भी है सॉल्व करने का, बट ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, सिमेट्री है प्रॉपर्ली, तो स्ट्रेट अवे सॉल्व कर लो। ओके, हाँ कुछ और वैल्यू पूछा होता, 6 की बजाय 7 में पूछा होता, तब फिर हमें सॉल्व करना ही पड़ता, कोई और ऑप्शन नहीं था उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, let n be the smallest positive integer that leaves a remainder of 2 when divided by 3, 4, 5 and 6. 2 रिमाइंडर दे रहा है हमारा when we are dividing by 3, 2 दे रहा है जब डिवाइड करें 4 से, 2 दे रहा है जब 5 से डिवाइड करें, 2 दे रहा है जब 6 से डिवाइड करें, बट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, और ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n, तो बेसिकली n विल बी a multiple of LCM of 3, 4, 5, 6 plus 2, लेकिन LCM multiplied by some constant, some integer plus 2, this should be value of n, or that n is also a multiple of 11। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, LCM of 3, 4, 5, 6 दैट इज इक्वल टू 60 आएगा, तो 60k plus 2 शुड बी द फॉर्मेट ऑफ नंबर n, बट 11 का मल्टीपल भी है, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11। 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए, 60k plus 2 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। अब 60k में 55k तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है 11 से, रिमाइंडर हमारा बचेगा 5k plus 2, बिकॉज 55k तो वैसे भी डिवाइड हो ही रहा है, हमेशा रिमाइंडर 0 देगा, तो 5k plus 2 शुड बी गिविंग रिमाइंडर इक्वल टू 0। 5k plus 2 हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और 5k plus 2 की वैल्यूज पुट करके देख लो, तो k की वैल्यू अगर 0 ले लिया, इफ k इज इक्वल टू 0, तो 5k plus 2 विल बी 2, नॉट डिविजिबल बाई 11, k इज इक्वल टू 1 पे दिस विल बी 7, k इज इक्वल टू 2 पे दिस विल बी 12, k इज इक्वल टू 3 पे दिस विल बी 17, और k इज इक्वल टू 4 पे दिस विल बी 22। 22 इज डिविजिबल बाई 11, यानी कि k इज इक्वल टू 4 इज द मिनिमम पॉसिबल केस, तो k इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 242। 242 is our number which is leaving a remainder 2 when divided by 3, 4, 5 and 6, but is exactly divisible by 11. Sum of these will be 2 plus 4 plus 2, which is equal to 8. Option D will be the answer. Is that part clear? Okay. So इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन समझ में होंगे। अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट लाइक बटन, ऑल्सो गिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।